जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जुल्म पे खामोशी नहीं सहेंगे खामोशी नहीं सहेंगे। इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो आसाम के गरीबों पर इंसाफ करो आसाम के गरीबों पर इंसाफ करो। ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು NRC CAA ಕತೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಶುರು ಇದೆ। ये अभी अभी क्या हुआ है, शुरू हुआ है। ये NRC CAA खत्म हुआ सो मामला नहीं है। ये लोग आसाम के जरिए से, आसाम के मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती के जरिए से आज हम लोगों को पता चल रहा है कि आज भी NRC CAA का मुद्दा जिंदा है। तो इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, मुसलमानों को, रहनुमाओं को आवाज उठाना पड़ेगा, उलमा इकराम को आवाज उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग देखा, अभी हाल ही में देखा जा रहा है, हर जगह पे जुल्म ज्यादती बढ़ते जा रहा है। कभी मुसलमानों के मस्जिदों को गिराया जा रहा है, कई मुसलमानों के मदरसों को, मणिपुर में आप लोग देखे रहेंगे कितने के मणिपुर में मदरसों पर ताला लगाया। मेघालय में मदरसों के ऊपर एक ताला लगाने का काम है, सीज करने का काम है, एक ये गवर्नमेंटों के जरिए से चल लेकर है। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ, मुसलमान आवाम से, मुसलमानों जागना पड़ेगा, नहीं बोले तो आने वाले दिनों में बहुत जुल्म ज्यादती हमको सहना पड़ेगा। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಸಾಂನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಧ್ವನಿ ಆಗಿದೆ ಇದು। ಇಂದು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು। ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ, ಉಡುಪು, ಆಹಾರ, ಶೌಚಾಲಯ, ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದೆ। ಇದನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಆಸಾಂನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಬಿಶ್ವ ಶರ್ಮಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು 8-10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಏನು ನೀವು UPಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಏನು ಒಂದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದು ಏನು ಹಾಲಿ ಆಸಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,000 ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಲ್ಡೇಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ। ಏನಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಬಾನಿ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ। ಇದನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹಿಸಲ್ಲ। ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡುವುದು ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೇಳುವುದು ಬಯಸುವುದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಏನು ಆಸಾಂನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರೀಗ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಸಾಂನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿರೋಧಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಏನು ಇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಲಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ಲಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಒಂದು NRC ಮತ್ತು CAA ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल वाइड हमारा प्रोटेस्ट चल लेकर है। आसम में जिस तरीके से मुसलमानों को ऊपर, घरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर हमला कर हेमंत बिश्वा गिरा रहे हैं, मैं हेमंत बिश्वा को ये बोलना चाहता हूँ और बीजेपी गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे कई घर है, ऐसे कई मकान है, ऐसे कई गवर्नमेंट ऑफिसेस है जहाँ पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बनाया गया, तभी हम लोग ये छेड़े नहीं। क्यों बोले तो यहाँ पर संविधान के खिलाफ हम लोग जाते नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी यही कहना है, मौजूदा हालात आप देखे होंगे, कभी यूपी में होंगे, कभी कर्नाटक में, कभी दिल्ली में, कभी असम में NIA के जरिए से, SI के जरिए से, ED के जरिए से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को, ऐसे कई जो अपोजिशन लीडर्स को दबाया जा रहा है। ये किस लिए दबाया जा रहा है? आने वाले दिनों में इनके खिलाफ बात नहीं करना बोलकर। आप हाल ही में असेंबली में देखे होंगे, मोदी को कुछ राहुल गांधी कुछ पूछते हैं अपोजिशन लीडर तो चुप हो जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये NIA हो या घर गिराना हो, यहाँ पर आप हिंदुस्तान में ना करिए। हिंदुस्तान की मिट्टी में आज भी हम लोग यहीं पर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते, यहीं पर दफन होने वाले हैं। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बढ़ते बढ़ते आते आते क्या हो रहा है, आप जुल्म सितम मुसलमानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, क्रिश्चियंसों को कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक हाथ में कलम होगा, एक हाथ में टीपू सुल्तान की तलवार होगी। अगर आप जुल्म सितम अगर नहीं रोकेंगे तो ये तलवार भी चलेगी, ये कलम भी चलेगा, संविधान के हिसाब के, संविधान के दायरे में रोकर। आपको इतना ही गौरव फिक्र करना है तो पहलगाम में जो अटैक हुआ, 4 आतंकवादी आपको मुसलमान हो, हिंदू हो, सब लोगों को मार कर गए, उनको आपको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। उनको आपको क्या एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, किसके साथ? ये पाकिस्तान के साथ एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। 350 RDX आया पुलवामा में अटैक, उस टाइम पर कुछ आप करिए नहीं। ये NIA, ED, CBI, ये बुलडोजर जो चलाना है, यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को, आदिवासियों को ना चलाए। जो बॉर्डर में जो जुल्म सितम कर रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर, उनके ऊपर चलाना बोलकर एक मांग है। और रही बात, आप जितना भी जुल्म को बढ़ाते, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हाल ही में देखे होंगे कई उलमाए कराम को भी मारा जा रहा है नमाज के नाम पर और चर्चों के नाम पर। मैं जितने भी जो भी हमारे पादरीज है, मुसलमान के उलमाए कराम से, जितने भी हिंदू सेक्युलर भाई जो पुजारीज है, उन तमाम से अपील करूंगा, आने वाले दिनों में, अभी तो आप आवाज नहीं उठाएंगे, आने वाले दिनों में तुम्हारे घर तक आया जाएगा, आपके घर तक भी डेमोलिश किया जाएगा। आपके मस्जिदों को, मंदिरों को छोड़ा नहीं तो आपके घर को भी छोड़ने के लिए वो लोग ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं गुजारिश करूंगा, मौजूदा हालत जिस शहर में रहते हैं उस शहर के उलमाए कराम से गुजारिश करूंगा, जो हुबली में आप देखे होंगे, हर बार मैं बोलता हूँ UAPA केसेस, जो बिला वजह UAPA केसेस लगाया गया, जिसके नाम पर आतंकवादी केसेस लगाए गए हुबली के। और रही बात, दरगाहें शहीद की गई। हमारे जो कई सालों से यहाँ के MP, कई सालों से क्या है, यहाँ पर नमाज होती आई, 2 टाइम नमाज होना है, फ्लैग होस्टिंग होना है, पीसफुली हम कर रहे थे। हाल ही में RSS बीजेपी का प्रोपोगेंडा लेकर आकर यहाँ पर 5 टाइम यहाँ पर के जोशी साहब चुनकर है, कभी ये दंगा फसाद नहीं किए। हाल ही में इनका पूरे हिंदुस्तान में दंगा फसाद ज्यादा हो रहा है। इसके तहत ये फायदा उठाने के लिए हुबली में अब 3-4 बरस से क्या है, यहाँ ईदगाह मैदान में गणपति बैठाने का एक प्रोपोगेंडा करके यहाँ पर भी हमने जुल्म सितम किया जा रहा है। तमाम से गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग इकट्ठा होकर जुल्म के खिलाफ लड़ना है। जिंदाबाद जिंदाबाद SDPI का नारा है, हर मजलूम हमारा है। जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, जुल्म पे खामोशी नहीं सहेंगे। खामोशी नहीं सहेंगे। इंसाफ करो इंसाफ करो, इंसाफ करो इंसाफ करो।
आसाम के गरीबों पर इंसाफ करो, आसाम के गरीबों पर इंसाफ करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मिनोरिटी को टारगेट करना बंद करो, मिनोरिटी को करना बंद करो, नफरत नहीं मोहब्बत चाहिए, नहीं मोहब्बत चाहिए, जुल्म नहीं इंसाफ चाहिए, जुल्म नहीं इंसाफ चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हिंदू हो या मुसलमान, सबसे पहले है इंसान, सबसे पहले है इंसान, आसाम के जुल्म के खिलाफ आसाम के जुल्म के खिलाफ हर गली में होगा इंकलाब, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बंद करो, बेनज़र पॉलिटिक्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेनज़र चलाना बंद करो, शर्म करो, शर्म करो, असम की बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हेमंत बिस्वा शर्म करो। अल्ताज पार्टी हॉल केशापुर सर्कल हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।